So I'm very fortunate to have the opportunity to be with you at this very auspicious time in the year. तो मैं बहुत भाग्यवान हूँ कि मैं इधर आया हूँ आप सबके समस्त इस साल में जो सबसे श्रेष्ठ समय है उसके दौरान. Now we are in the auspicious month of Kartik. Kartik is the last of the 4 months of austerity, Chaturmasya. तो अब हम इस मास में हैं जिसका नाम है कार्तिक. कार्तिक चतुर्मास के अंत में चौथा मास.
It's a very, very auspicious time. You get a lot of mercy if you do devotional service during this time. तो ये बहुत ही शुभ मास है और हमें बहुत सारी कृपा मिलती है अगर हम इस मास के दौरान भगवान की भक्ति करें तो। Right? Would you like to get the mercy? Are you eager to get the mercy of Krishna? क्या आप सबको भगवान की कृपा चाहिए? At least the men want some. The ladies are not much eager. इसे लगता है सिर्फ पुरुषों को चाहिए, माताओं को नहीं। Mata ji, कृपा नहीं चाहिए? Okay, Hare Krishna. So, Kartik month, very special month. Kartik is the name of Srimati Radharani. तो कार्तिक ये जो मास है बहुत ही श्रेष्ठ मास है और ये जो नाम है कार्तिक ये श्रीमती राधा रानी का नाम है। And Srimati Radharani, she is the greatest devotee of Lord Krishna. जो श्रीमती राधा रानी वो भगवान कृष्ण की सबसे परम भक्त है। She is always in the mood of serving Krishna. वो हमेशा इस मनोवृत्ति में रहती है कि भगवान की सेवा कैसे की जाए। And we're meant to follow Srimati Radharani. और हमें भी श्रीमती राधा रानी का परिचित का फॉलो करना चाहिए। We're all meant to be servants, and our service is meant to be to Lord Krishna. हम सब एक दास है और हमारे ये दासत्व का भाव है कि हमें कृष्ण से प्रेम करना चाहिए। Ekala Ishwara Krishna or Sabhritya. There is only one supreme Ishwara, Lord Shri Krishna. All others are his servants. तो एक ही परम ईश्वर है वो है श्री कृष्ण, अन्य सब कृष्ण के दास हैं। We may think, oh no, I don't want to be the servant, I want to be the master. तो हमें लगता है कि हमें दास नहीं बनना है, हमें तो प्रभु बनना है। That thinking will keep you in the material world. तो ये जो सोच है हमें भौतिक संसार में बांधे रखेगी। Sometimes you may be in the higher planets and other times you may be in the lower planets. तो कभी कभी हम ऊपर के ग्रहों में रह सकते हैं, कभी नीचे के ग्रहों में रह सकते हैं। Right? In this universe there are higher planets, Swargaloka, and above Swargaloka there is Brahmaloka. तो ये सृष्टि में बहुत सारे ऊपर भी ग्रह हैं जैसे स्वर्गलोक, और स्वर्गलोक से ऊपर आता है ब्रह्मलोक। So people think it would be very nice to go to Swargaloka, to have a long life, very opulent, everybody is very handsome and very good looking, there's a lot of pleasure there. तो लोगों को ऐसा लगता होगा कि मैं स्वर्गलोक जाऊंगा, मैं बहुत अच्छा दिखूंगा, मेरे पास बहुत धनराशि होगी, मैं बहुत भोगों का ईश्वर होगा। Right? We're all looking for pleasure, we want to be happy, and we think, oh, Swargaloka, I can go there, I will enjoy more there. तो हमें आनंद की जो खोज है, हमें ऐसा लग सकता है कि मैं स्वर्ग जाऊंगा तो मुझे आनंद की प्रदान होगा और मैं उधर बहुत खुश हो सकता हूँ। Yes, you can enjoy there for some time. तो उधर हम केवल कुछ समय के लिए आनंद का प्रभाव कर सकते हैं, But you cannot stay there forever. परंतु हम उधर ज्यादा समय तक नहीं रह सकते, Because in Swargaloka, there's also death. The devas, they also have to give up their body and they take birth in some other place. क्योंकि स्वर्गलोक में भी मृत्यु है। ये जो सारी देवी देवता हैं उन्हें भी अपना शरीर त्याग कर दूसरे जगह जन्म लेना पड़ता है। And sometimes it happens that sometimes the devas, they do something wrong and they get cursed by the guru. कभी कभी ऐसे भी होता है कि कुछ देव है जो गलत कार्य करते हैं और उनके जो गुरु है उनको श्राप देते हैं। Just like one time Indra, powerful king of heaven and controller of the rain, Indra got cursed by his guru to become a pig. जैसा कि एक बार इंद्र जो कि ईश्वर है और जो बारिश के ईश्वर हैं, उनको एक बार श्राप मिला था उनके गुरु से कि वो एक सूअर का रूप धारण करें। He was so foolish, he was so attached to sense gratification. So his guru cursed him and said, put you into the body of a pig. You want to enjoy, take the pig body.
तो वो ऐसे मूर्खता की वजह से उन्हें बहुत इंद्र तृप्ति का बहुत शौक था, तो उनके गुरु ने उनको बोला कि आप ऐसे मूर्ख बन रहे हैं, आपको इंद्र तृप्ति करना है तो आप ये सुअर का शरीर ले लो। So Indra, he'd been the king of heaven, and next moment he's in the body of a pig, and he was in the pig barn with all the other pigs, and he was eating the pig food every day. तो ये जो इंद्र है, जो स्वर्ग के राजा हैं, वो एक क्षण में राजा हैं और दूसरे क्षण में अभी वो सुअर के शरीर में आ गए और वो अन्य सुअरों के साथ रह रहे थे, उनका ही खाना खा रहे थे। And he stayed in the pig barn, he got to know the other pigs, he got some pig wives, and he had many pig children. तो ऐसे ही सुअर के शरीर में उनके पास सुअर की पत्नियां भी थी और सुअर जैसे बच्चे भी थे। So after some time, the guru thought, okay, he's been a pig long enough, now I should take him back. तो उनके गुरु को लगा कि अच्छा अभी काफी समय हो गया है, ये सुअर के शरीर में इंद्र है, तो अभी उनको वापस बुला लेना चाहिए। So he came to see Indra. Indra's in the pig body, and he said to Indra, he said, okay, you've been a pig long enough, now you should come back to Swargaloka. तो वो इंद्र से मिलने आए जब इंद्र सुअर के शरीर में थे, और वो इंद्र से कहने लगे कि अभी आपने बहुत आराम कर लिया, आनंद कर लिया, अभी आपको वापस आना चाहिए स्वर्गलोक। But Indra said, no, I like it here, I'm happy here. पर इंद्र ने कहा कि मुझे तो इधर बहुत आनंद आ रहा है, मुझे बहुत मजा आ रहा है इधर। Every day we get pig food, you know, I'm getting nice and fat here, I have a big body. रोज मुझे जो सुअर का खाना मिल रहा है इधर, मुझे बहुत आनंद आ रहा है, मुझे पता है मेरा शरीर भी इतना बड़ा हो गया है, इतना आनंद आ रहा है मुझे। And I have my pig wife, and I have my pig children, I have a lot of pig children here. I can't. बहुत सारे संतान है, वो भी सुअर है, मैं उनको छोड़ के इधर से नहीं आ सकता हूँ। Material life is like that. You can be living in the most horrible situation, and we think, no, it's very nice, I'm happy here. तो भौतिक जीवन ऐसा ही होता है, हमें बहुत ही कठिनाइयों से और बहुत ही गंदे परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, फिर भी हम सोचते हैं कि इधर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। So Indra's guru said, oh, you want to stay here, is it? Okay. So Guru went and he told the butcher, come with me, there's a big fat pig there for you. तो गुरु ने बोला कि अच्छा आपको इधर मजा आ रहा है, तो वो जो गुरु है वो एक कसाई के पास गया और उन्होंने कहा कि आओ इधर, मेरे पास बहुत अच्छा सुअर है आपके लिए। So the butcher came with his big knife and he saw Indra in the big pig body. He thought, oh yes, he's a big fat pig, let me get him, I'll chop him up. और जो कसाई था उसको बहुत आनंद आया ये सुन के कि अरे इतना बड़ा सुअर मुझे खाने को मिलेगा, तो एक बड़ा अपना छुरी लेके आया और उसको काटने के लिए। So then Indra said, oh, take me with you, don't let the butcher get me. तो इंद्र उस समय ओ प्लीज मुझे लेके चलिए यहाँ से, मुझे वो कसाई के पास नहीं जाना है, मुझे अपने साथ लेके चलिए। So material life is like that, you see. Whatever situation we're in here in this material world, it is temporary. तो ये जो भौतिक जीवन है हमारा, ये ऐसा ही है, कोई भी परिस्थिति में हम हो वो बहुत क्षणिक है। Right? There are 84 lakh species of life, and we go through these different species. तो 84 लाख लोग योनियां हैं और हम सब उन योनियों से गुजरते हैं। We're fortunate now we have the human form of life. हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। It's rare to get the human body. There's so many other species of life. हाँ, ये जो मनुष्य का शरीर है ये बहुत रेयर है और बहुत सारे अन्य योनियां हैं। There's so many trees, there's so many fish, so many birds, so many plants. They also have souls. They're also living entities. तो बहुत सारे वृक्ष हैं, बहुत सारे पौधे हैं, बहुत सारे मछलियां हैं, बहुत सारे जानवर हैं, उन सब में भी एक एक आत्मा है। So we are very fortunate to have the human form of life. तो हम बहुत भाग्यवान हैं कि हमें ये मनुष्य का शरीर मिला है। But the animals, they also have a body, they also eat, they also sleep, they also mate, they also defend.
परंतु जो जानवर है उनके पास भी शरीर है, वो भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, वो भी मैथुन का जीवन जीते हैं और वो भी अपने आप को बचाते हैं हानि से। So what is the difference between the animal and the human form of life? तो क्या हमें डिफरेंस लगता है जो मनुष्य का जो शरीर है और जानवर का शरीर है उससे? Are we just dvipada pashu? Are we just two-legged animals? तो क्या हम द्विपाद पशु हैं, सिर्फ दो पैरों वाले जानवर हैं? Are we no other purpose different from the animal? Is our life just the same as the animals? क्या हमारे जिंदगी का मकसद वैसा ही है जैसे जानवरों का है? Animal life, they have no religion. तो जो जानवर का जीवन है उनमें कोई भी धर्म नहीं है। They can never ask. They can never inquire about who I am, why I'm here, where I'm going. तो जो जानवर है वो कभी भी जिज्ञासा नहीं कर सकते कि मैं कौन हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बाद। Human life is meant to be thoughtful. We're meant to inquire, to understand about who I am and why I'm here. तो जो मनुष्य का जो शरीर है उससे हमें ये एडवांटेज मिलता है कि हम सोच सके कि मैं कौन हूँ, मैं इधर क्यों हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ इसके बाद। So Srila Prabhupada, our founder, Acharya for this society, Hare Krishna Society, he went to America and he taught the people what is the real purpose of life. तो जो शिला प्रभुपाद है, जो हमारे हरे कृष्ण आंदोलन के संस्थापक आचार्य है, वो अमेरिका गए थे दूसरों को, अन्यों को सिखाने के लिए कि ये जीवन का क्या मकसद है। Srila Prabhupada went there to America, and at first the people were saying, "Oh, are you just like the other swamis? They come from India, they come to get money, to go back to India to make a nice place for them to live." तो जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए तो उधर बहुत सारे लोग उनसे पूछने लगे, क्या आप अन्य स्वामियों की तरह हैं जो इधर आते हैं, पैसा इकट्ठा करके अपने घर जाके अच्छे से बस जाते हैं? But Srila Prabhupada told them, "I did not come here to beg from you. I've come here to give you what you have forgotten." तो शिला प्रभुपाद ने उनको कहा कि मैं आपसे इधर भिक्षा मांगने नहीं आया हूँ, परंतु मैं आपको कुछ देने आया हूँ जो आप भूल चुके हैं। We've forgotten our real purpose in life. तो हम जीवन का लक्ष्य भूल चुके हैं। So we have to, how do we get that memory back again? Just like if you bump your head, you can lose your memory. तो हमें वो याददाश्त वापस कैसे आएगी? जैसे कि कोई व्यक्ति है, वो अपना सर टकरा जाता है तो उसकी याददाश्त खो जाती है। So like that, we have come in this material world and we have forgotten our real identity as spiritual beings. तो इसी प्रकार हम इस भौतिक दुनिया में आए हैं और हम भूल चुके हैं कि हम आध्यात्मिक जीव हैं। We're thinking, I am the body, but which body? You have many bodies. हम सोचते हैं हम ये शरीर है, पर कौन सा शरीर? हमारे पास बहुत अन्य शरीर हमें प्राप्त हो चुका है। In Bhagavad Gita, Lord Krishna explains the history of Bhagavad Gita to Arjuna. तो भगवद गीता में कृष्ण इस दौरान में समझाते हैं अर्जुन को, Imam Vivishvati Yogam Protaham Abam Avyayam Vivishwan Manave Prahur Manur Ikshvaka Veprava. Lord Krishna is explaining that I instructed this knowledge of yoga to the sun god Vivishwan, and Vivishwan gave this knowledge to Manu, father of mankind. Manu gave it to Ikshvaku. तो इस श्लोक से हमें सीखने को मिलता है कि भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है, ये पहले मैंने सूर्यदेव को दिया था, उन्होंने अपने पुत्र विवस्वान को दिया था और विवस्वान ने इक्ष्वाकु मनु को दिया था। So Arjuna was listening to Krishna and he said to Krishna, Krishna, you gave the knowledge to the sun god? He said, sun god is so much older than you and I. How could you give the knowledge to him? तो अर्जुन ने ये जब सुना, उन्होंने कृष्ण से प्रश्न किया कि आपने सूर्यदेव को ये ज्ञान कैसे दिया? सूर्यदेव तो आप और मुझसे भी बहुत पूर्व से हैं, तो आपने उनको ये ज्ञान कैसे प्रदान किया?
So Lord Krishna told Arjuna that many births you and I have had. I can remember them, you cannot. तो कृष्ण ने अर्जुन को उत्तर देते हुए कहा कि बहुत बहुत जन्म आपने और मैंने लिए हैं, फर्क सिर्फ इतना है कि मुझे सारे जन्म जो है वो याद है और आपको नहीं. Just like I joined this Krishna consciousness movement more than 50 years ago. So many of you were not born. जैसे कि मैं कृष्ण आंदोलन में जुड़ा हूँ, अभी 50 साल हो गए, बहुत सारे लोग अभी तो उस समय जन्म भी नहीं लिए होंगे. Where were you? आप सब कहाँ थे? You were in another body, आप सब दूसरे शरीर में थे, some other place. कोई दूसरे स्थान में. Now you've come in this human form of life. You have this body, you're Indian or Hindu, whatever. You have a special opportunity. तो अभी आप सबको ये मनुष्य का शरीर रूप मिला है, आप अभी भारतीय हैं और आपको ये अवसर बहुत प्रदान हुआ है. We have to take advantage of the human life. तो हमें इससे मनुष्य जन्म का सार्थक करना चाहिए. Because as human beings, we enjoy so many things better than the animals. क्योंकि जो मनुष्य का शरीर है वो बहुत सारे उपलब्धि, बहुत सारे अच्छी चीजें प्राप्त करते हैं जो जानवर शरीर में भी नहीं मिलती है उसको. Many of you have cars and you have nice houses, so you're living in some nice apartment somewhere. तो आप सबके पास बहुत अच्छी गाड़ियाँ होंगी, बहुत अच्छा घर होगा जहाँ आप रहते हैं. We have hospitals for the people. We have schools for the children. So many facilities, not for the animals. तो ऐसा हमारे पास बहुत चीजें हैं जैसे अस्पताल और स्कूल बच्चे पास नहीं है. So when you have a lot of facility, there's also responsibility. तो जब हमको ये सब अवसर मिलता है, हमको ये सब मिलता है तो हमारे अंदर बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होना चाहिए. Just like if you're working in the job, somebody is the manager, they have a big responsibility to make sure that the work is all being done nicely. हाँ, जैसा कि कोई कंपनी में आप काम कर रहे हैं, उधर जो मैनेजर है उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होंगी कि उनको काम अच्छे से करवाना है. The manager gets paid more. He's getting paid more money. Maybe he gets a nice car from the company. Maybe company give him a nice house also and servant. So he gets more facilities, but he has a big responsibility also. तो ये जो मैनेजर होगा आपकी कंपनी में, उनका जो पे है, मतलब पैसे उनको ज़्यादा मिलते होंगे, पगार ज़्यादा होगा, परंतु उनके कंधों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी होंगी. हो सकता है उनको गाड़ी भी मिले कंपनी से, घर भी मिले अच्छा, परंतु उनका कर्तव्य जो जिम्मेदारियां हैं वो बहुत ज़्यादा है. So the same way we are enjoying nice living, we have a duty, a higher duty than the animals. इस प्रकार हम अपना जीवन आनंद से गुजार रहे हैं, परंतु हमारे कंधों पर ये जिम्मेदारी है जो जानवरों पर नहीं है. Animals, they don't have any shastra. They don't have any hope to read the Bhagavad Gita or to hear the knowledge from Mahabharata or Ramayana. तो जो जानवर है उनके पास शास्त्र नहीं है, वो कभी भी महाभारत या रामायण से पठन करके ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते. The Vedic knowledge is meant for people, human beings. तो ये जो वैदिक ज्ञान है वो मनुष्य के लिए है. Srila Vyasadeva summarized the Vedic knowledge in Vedanta Sutra. श्रील व्यासदेव जी ने सारे वेद ग्रंथों का जो ज्ञान है उसका सारांश वेदांत सूत्र में दिया है. Vedanta means the end of knowledge. वेदांत अर्थात वेद का अंत. And the Vedanta Sutra begins Atato Brahma Jignasa. Atato means now. Now you're a human being. You have to understand what is matter and what is spirit. तो ये जो वेदांत सूत्र है वो शुरुआत ही होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा. अथातो का अर्थ अभी, इसी क्षण
अभी हमें समझना चाहिए कि कैसे भौतिक और आध्यात्मिक में अंतर क्या है। Just like there's a body, it's material body, it's matter. It takes birth and it dies. जैसा कि ये शरीर है, ये शरीर भौतिक है, ये जन्म लेता है और ये मरता है। But within the body there is a soul, and for the soul there's no birth and there's no death. और इसी शरीर में आत्मा है, परंतु आत्मा के लिए कोई भी जन्म नहीं है और मृत्यु भी नहीं है। So we have to understand first thing, we are not the body. We are living in the body, but we are different from the body. तो ये हमें पहले समझना चाहिए कि हम ये शरीर नहीं है, हम ये शरीर में रहते हैं परंतु शरीर से भिन्न है, ये शरीर नहीं है। We are all pure souls, and the nature of the soul, Sat Chit Anand. हम शुद्ध आत्मा है और आत्मा का जो विवरण है वो है सच्चित आनंद। Right? Eternal, full of knowledge and full of bliss. तो वो सदैव है, पूरी विज्ञान है, उसके पास ज्ञान है और आनंदमय है। But we are suffering in the material world. We are suffering. Why are we suffering? Because we are thinking we are the body. परंतु भौतिक संसार में हम सब देख रहे हैं कि कितनी कठिनाई से हमारी जिंदगी गुजर रही है। क्यों हम इस दुखालय में हैं? क्योंकि हमें ये लगता है कि हम शरीर हैं। The body suffers. The soul doesn't suffer. जो शरीर है उसमें ये सारी बहुत कठिनाइयाँ आती है, जो आत्मा है उस पर कुछ नहीं बीतता। So we have to learn to control the mind. तो हमें ये सीखना चाहिए कि कैसे हमारे मन को काबू किया जाए। Higher than the senses is the mind, सारे इंद्रियों से ऊपर है हमारा मन and higher than the mind is intelligence. और मन से ऊपर है बुद्धि And intelligence is seated next to the soul. और जो बुद्धि है वो आत्मा के निकट बैठती है। So we have to get the good intelligence from the soul. तो इसी प्रकार हमें अच्छा बुद्धि जो है वो जीव के लिए लाना चाहिए। When you chant the Mahamantra, then you awaken spiritual knowledge. तो जब हम महामंत्र का जप करते हैं तब हमें आध्यात्म का ध्यान होता है। In the Kali Yuga, this age is Kali Yuga, we don't live very long, we have a short life. तो ये युग जो है वो है कलियुग, तो हम इतना समय तक जीते नहीं, हमारा जीवन जो है बहुत कम समय में समाप्त हो जाता है। Other ages, Satya Yuga, people live 1 lakh. जो दूसरा युग है जैसे सत्य युग में लोग 1 लाख वर्ष तक जीते थे। And then Treta Yuga, they live 10,000 years. त्रेता युग में लोग 10,000 साल की आयु होती थी। Dwapara Yuga, 1,000 years. द्वापर युग में 1000 वर्ष। Now Kali Yuga, we don't even live 100 years. तो कलयुग में लोग 100 वर्ष के लिए भी नहीं जी पाते। We have a short life. बहुत कम समय है हमारे। Srila Vyasadeva predicted, he described everything in his Purana, Bhagavad Purana. तो श्रील व्यासदेव ने भागवत पुराण के माध्यम से हमें ये सब बताया है। He said, Manda Sumanda Matayo, Manda Bhagyahi Upadrutaha. People in the Kali Yuga, they're lazy, misguided, unlucky, always disturbed. तो इस श्लोक के माध्यम से श्रील व्यासदेव जी हमें बता रहे हैं कि कलियुग में जो लोग हैं वो बहुत ही आलसी होते हैं, उनको सही दिशा दिखाने के लिए कोई होता नहीं है, वो हमेशा उत्सुक रहते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। We have a lot of problems. हमें बहुत कठिनाइयाँ होती है। Very difficult to get peace of mind. ये जो मन की शांति है ये बहुत कठिन होता है प्राप्त करना। So we have to chant the Mahamantra. तो हमें महामंत्र का जप करना चाहिए। We say, Kali Kali Nama Rupe Krishna Avatar. Krishna comes in the Kali Yuga in the form of the holy name. जो कृष्ण है वो अवतरित होते हैं कलियुग में ये नाम प्रभु के रूप में।
So we have come to request all of you nice people, kindly take to this chanting of the holy names, chant Hare Krishna and make your life successful. तो हम यहाँ से विनती करने आए हैं कि आप कृपया करके ये हरे कृष्ण का जो जप है वो कीजिए और अपना जीवन हमेशा सक्सेसफुल बनाइए। People think success is to have a lot of money, but money cannot save you from death. लोगों को लगता है कि जीवन का सबसे उत्तम चराग ये है कि उनके पास बहुत सारा धन हो, परंतु वो धन हमें कभी भी मृत्यु से बचा नहीं सकता। Right? Even big, powerful, rich men, they die. Ambani, he also died, right? His sons got all the money, all the business. तो ऐसे अन्य लोग होते हैं बहुत शक्तिशाली, बहुत ही अमीर होते हैं, वो भी मर जाते हैं, जैसे अंबानी, वो भी मर गया और अभी उनके जो पुत्र हैं उनके पास सारा धन है। So money, that's not the goal of life. तो जीवन का लक्ष्य जो है वो धन पाना नहीं है। Now you're in the human body. If next life you have to become a dog, well, it's very bad. तो अभी हमारे पास मनुष्य का शरीर है, अगर अगले जन्म में हमको कुत्ते का शरीर मिले तो वो बहुत ही गंदा होगा। But you all believe in reincarnation. हाँ, पर पुनर्जन्म में हम सब विश्वास तो करते ही हैं। Right? We give up one body, we'll take another body. तो हम एक शरीर को त्याग के दूसरा शरीर प्राप्त करते हैं। Where do you want to go from here? यहाँ से हमें कहाँ जाना है? Right? You want to come back again here in Saudi? क्या हमें सऊदी वापस आना है अगले जन्म में? What kind of body do you want again? कौन सा शरीर प्राप्त करना है आप सबको? You have to think about the future. इस भविष्य के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। Right? When your children go to school, you tell your children, oh, study hard, do well, think about the future. तब जब हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल में तब उनको बताते हैं कि भविष्य के बारे में सोचो, अच्छे से पढ़ाई करो। So children should say to the parents, what are you thinking about the future? What about your future? तो बच्चों को माँ बाप से पूछना चाहिए, क्या आप भविष्य के बारे में सोच रहे हैं? आपके भविष्य के बारे में क्या? You're getting older. One day you're going to die, going to leave the body. Where are you going to go? आप अभी बूढ़े हो रहे हैं, एक दिन आपको ये शरीर त्यागना पड़ेगा, इसके बाद आप कहाँ जाएंगे? We have one book, maybe you've read it, maybe you think it's called Coming Back, The Science of Reincarnation. तो ये एक पुस्तक का नाम महाराज बता रहे, कमिंग बैक, ये जो विज्ञान है पुनर्जन्म का। Just like there was a great king, Bharat Maharaj. He renounced everything. He went to Himalayas. He was up in the Himalayas at the Gandaki, up there in the Himalayas. He was living there. But he got attached to a deer. Next life he had to become a deer. तो जैसे कि लीला भरत महाराज की एक कहानी है, वो बहुत ही मतलब मशहूर राजा थे, उन्होंने सब कुछ त्याग कर वो हिमालय में चले गए, गंडकी जो नदी है उसके पास रहने लगे, परंतु एक जो डियर है उनसे बहुत अटैचमेंट हो गया। He had renounced the world. He'd given up everything, but still somehow he got attached to an animal. उनके पास कुछ भी नहीं था, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया था, परंतु फिर भी एक जानवर के प्रति वो आसक्त हो गए। So these things happen to people. Somebody may be big man, prime minister. Next life he may be dog. तो ऐसा होता है, बहुत मशहूर जो लोग होते हैं, हो सकता है कोई देश का मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो एक जन्म में, और दूसरे जन्म में उसको कुत्ते का शरीर मिले। Prabhupada said to American people, he told them, he said, dog runs on 4 legs, you run on 4 wheels, but the business is the same. तो प्रभुपाद जी जब अमेरिका गए थे, उन्होंने कहा था ये जो कुत्ता है ये 4 पैरों पर दौड़ता है, आप जो है जो 4 पहियों पर गाड़ी चला रहे हैं, परंतु आप दोनों का धंधा एक ही है। Dog is thinking where is food, where to sleep, where to have sex. Man is thinking same thing. जो कुत्ता है वो सोचता है कि कहाँ मैं खाना खाऊं, कहाँ मैं सोऊं, कहाँ मैं मैथुन जीवन से आनंद में गुजार सकूं। जो इंसान है, मनुष्य है, वो भी ऐसे ही सोचता है। Human life is meant for higher things. We're meant to understand the absolute
absolute truth. So it begins, first of all, understand who I am, that I am not the body, I am a soul, जो ये मनुष्य का शरीर the Supreme Lord. और ऐसे बहुत सारे जीव आत्मा हैं, परंतु परमात्मा केवल एक ही है। We have to have the relationship with Krishna. तो हमें अपना जो जीवन को रिलेशनशिप है वो कृष्ण के साथ संबंध बनाना है। And we get that by chanting the Maha Mantra. और ये संबंध हमें तब होगा जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे। So Lord Krishna comes in the form of his holy name, and he also came as his devotee. He came as Chaitanya Mahaprabhu to teach everyone to chant the holy name. तो कृष्ण जो है वो अवतरित हुए नाम प्रभु के रूप में, और वो एक और बार उन्होंने अवतार लिया चैतन्य महाप्रभु के रूप में, जो वो अपने भक्त बन के आए और अन्यों को सिखाने के लिए कि कैसे ये महामंत्र का जप किया जाए। It is stated in the Shastra, Kale doshane de rajan asti eko mahadguna kirtana deva Krishna shya mukta sangha param praja. The age of Kali is an age of many faults. Many things are bad about this age. तो ये श्लोक के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है, ये जो कलयुग है ये दोष का निधि है, पूरा महासागर है, दोषों से भरा हुआ है। But there's one good thing. Just by doing Krishna Kirtan, you can get all success. परंतु एक महागुण है, वो ये है कि even the devas from heaven, Swarg, they want to come here to take birth at this time because it's so easy for all of us to become Krishna conscious. तो अन्य देवी देवता हैं वो भी जन्म लेना चाहते हैं इस धरती पर कलयुग में, क्योंकि बहुत आसान तरीका बताया गया है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके हमें कैसे सफलता प्राप्त हो। And if we are Krishna conscious, then at the end of life we'll think of Krishna and go back to be with Krishna. और अगर हम कृष्ण भावनामृत होंगे तो अंत में जब हमारा शरीर त्यागने का टाइम आएगा तब हम कृष्ण के बारे में सोचकर वापस भगवत धाम जा सकते हैं। Who wants to go to Goloka? वो लोग कौन जाना चाहता है? Oh, many people want to go. Okay. Flight full, eh? ऐसे लगता है हवाई जहाज फुल है। So, no problem. Krishna can take everyone. There's so many more souls in the spiritual world. कृष्ण हम सबको लेके जा सकते हैं और आध्यात्मिक जगत में इससे भी ज्यादा जीवात्माएं हैं। And Lord Krishna is anxious to bring all of us back to Him. हाँ, कृष्ण बहुत उत्सुक हैं कि कैसे हम सब उनके पास वापस जा सकते And हैं। that's why He came Himself to teach us to chant Hare Krishna. इसलिए वो स्वयं अवतरित हुए कि कैसे हमें सिखाया जाए कि हरे कृष्ण का जप कैसे किया जाए। And then He sent people like Srila Prabhupada to teach all of us to become Krishna conscious. और उन्होंने अपने भक्तों को जैसे श्रील प्रभुपाद को भेजा कि कैसे हमें सिखाया जाए कि हरे कृष्ण महामंत्र कैसे जपना है। Just see how merciful Krishna is. You've come away from the holy land of Bharatvarsh to this place, so far away from the holy land of Vrindavan, and like that. You're here in this, but still Krishna is sending His devotees, trying to tell you to chant the holy name. तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कृष्ण कैसे दयावान है। आप सब भारत भूमि, पवित्र भूमि, वृंदावन धाम और ये सब छोड़ के इधर आए हैं सऊदी, परंतु फिर भी कृष्ण इतने दयावान है कि अपने भक्तों के माध्यम से हमें बताते हैं कि कैसे उन तक वापस जाया जा सकता है। So we fall at your feet. We beg all of you. You're very nice people. You're very pious. You're so good. You have so many nice qualities. We just beg you, you please take to this Krishna consciousness, you please chant the holy name and be happy. तो ऐसे हम सब आपके पैर चरणों पर गिरकर प्रणाम करके आपसे दरख्वास्त करते हैं कि आप इतने बुद्धिमान हैं, आप इतने अच्छे भक्त हैं, व्यक्ति हैं, तो आप सब ये हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके कृष्ण भावनामृत को उठाइए अपने जीवन में। साधु सुखी रखो, हरे कृष्ण बोलो। Right, everybody can be happy by chanting the Maha Mantra.
Very simple program, chanting Hare Krishna and taking nice prasada. तो ऐसे सब आनंदमय हो सकते हैं हरे कृष्ण का जप करके, केवल हरे कृष्ण का जप करना है और कृष्ण प्रसारण पाना है। So thank you very much. Are there any questions? आप सबका बहुत धन्यवाद। कोई प्रश्न पूछना चाहेगा? Yes. महाराज, मेरा बात हो है क्यों अमेरिका में गया, क्यों दूसरा कंट्री में, हर कंट्री में क्यों नहीं आएगा? मेरा बहुत यही क्वेश्चन है। Why did Prabhupada go to America and then come to Middle East or any other country? Prabhupada went to America because America was leading the world at that time. It was the #1 country in the world, very powerful, influencing everyone. So Prabhupada thought, go to the top, get the Americans first. And then what they do, everybody follows. Just like skyscraper buildings. America built these skyscraper buildings. Now everywhere in the world they build these skyscraper buildings. तो प्रभुपाद इसलिए अमेरिका गए क्योंकि उस दौरान प्रभुपाद के समय में अमेरिका जो है वो दुनिया में सबसे श्रेष्ठ देश था। जैसे महाराज उदाहरण दे रहे थे कि जैसे लंबी लंबी इमारतें हम देखते हैं, पहले अमेरिका में बना था, फिर अन्य देशों ने उसको वहां से उठाया। तो प्रभुपाद को लगा कि पहले मैं अमेरिका को जाके प्रचार करूंगा, तब जो अन्य देश है वो भी पीछे पीछे आएंगे। And Prabhupada then went to America, he brought the Americans, he brought them to India. And he got out and showed them, he said, see, even the American people are taking to this and chanting and dancing. And so many people in India, they were all affected, they all understood, oh, Krishna is very great. They also became devotees. तो ऐसे जब प्रभुपाद ने उधर प्रचार किया तो अमेरिकन जो वहाँ पे लोग हैं उनको फिर इंडिया ले गया। फिर इंडिया में सब लोग देखने लगे कि अच्छा ये सारे गोरे लोग भी इतना हरे कृष्णा का जप कर रहे हैं। तब उनको समझ में आया कि हरे कृष्ण भावनामृत सही में असली चीज है। तो बहुत सारे लोग फिर उसका लाभ उठाने लगे। But some people, they tried to get away from the mercy of Mahaprabhu. They didn't want the mercy. They ran away to Saudi. परंतु कुछ लोग हैं जो सऊदी भाग के आ गए, उनको महाप्रभु की कृपा नहीं चाहिए। They thought, I don't want to be devotee. उनको लगा कि मैं भक्त नहीं बनूंगा। But Krishna is sending us to find you, give you the mercy. तो कृष्णा हमें भेज रहे हैं कि आपको खोज करके ढूंढ निकाले कि कैसे हम कृष्ण का जो कृपा है आप सब पे बांट सके। You cannot escape. ऐसे हम बच नहीं सकते। The mercy of Krishna is so great. तो कृष्ण की जो कृपा है ये बहुत अद्भुत है। हरे कृष्णा। Yes. हमारा सबका श्री चरण में लोग प्रणाम। तो ये मेरा प्रश्न है कि हमारा जो पहले मानव है मनु और का रूप कितना है? प्रभु आप आगे आएंगे थोड़ा। मेरा प्रश्न है, हमारा जो पहला मानव मनु और शतरूपा, उसके बाद हमको 16 शिलक और जीव जानवर का रूप क्यों मिलता है? पहले का मानव, हमारा जो पहले मानव शतरूपा और मनु है, उसके बाद हमारा 84 लोग को जन्म होता है और जीव जानवर का क्यों जन्म होता है? जानवर क्यों जन्म होता है? So at first we become human beings, then why do we take birth as so many other living entities in the 84 lakh species? Yes. If you don't use the human life properly, then you enter into the lower species of life. If you die in the mode of ignorance, then you take a body in the mode of ignorance. A body like an animal or a plant or a tree. Because we did not use the human life properly, so we get punished. तो अगर हम मनुष्य का शरीर जो है अच्छी तरह उपयोग नहीं करते, तब हम अन्य दूसरे शरीर प्राप्त करते हैं। जैसे कि ये शरीर छोड़ते समय, त्याग करते समय अगर हम तमोगुण से प्रभावित हैं, तो तमोगुण के प्रभाव से हमें दूसरे और जैसे जानवर या पौधे, पशु पक्षी, इनका योनियों में जन्म मिलेगा, क्योंकि हम इस मनुष्य शरीर का सही तरह से उपयोग नहीं करें। If you live like in consideration, then if you live like a pig, next life you become a pig.
Because you didn't live like a human being, you lived like an animal. So next life you get animal body. तो अगर कोई इंसान है वो सुअरों की तरह जी रहा है, कुछ भी खा रहा है, कहीं भी मैथुन कर रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो इस शरीर छोड़ने के बाद उसको फिर वही सुअर का शरीर प्राप्त होगा। जैसा करेगा ऐसा पाएगा। So be very careful. Use this human life very carefully. The things you do in this life now will determine your next life. हमें बहुत सावधान रहना चाहिए हमारे कार्यों का। जो भी हम अभी करेंगे, हमारा जो पुनर्जीवन है उस हिसाब से प्रभावित होगा। Okay. Any other questions? और कोई प्रश्न? आप सब संतुष्ट हैं? So how many of you are chanting Hare Krishna? आप सब में से कितने भक्त हरे कृष्ण का जप कर रहे हैं? Continue for another 5-7 minutes. How many of you are Anything initiated? question? तो आप सब में से दीक्षित कितने हैं? Oh, very few hands. Everyone should have a guru. Say, Janame Janavi Sita Mata Pai, Krishna Guru Why one should accept? Nahanuri Vaja Hariyai. क्यों एक गुरु ग्रहण करना चाहिए? Understand? Everyone has got a mother and a father. Even the dogs and the insects, they all have a mother and father. So just to have the mother and father, that's not very special. But only the fortunate souls have a guru. And by the grace of guru, then you get Krishna. तो हम सब के पास एक गुरु होना चाहिए हमारे जीवन में। गुरु के माध्यम से ही कृष्ण की प्राप्ति होगी हमको। तो ऐसे जानवर देखा जाए, पशु पक्षी देखा जाए, शरीर इंसान का भी देखा जाए, सबके पास माता पिता है, परंतु केवल माता पिता होना ये केवल जरूरी नहीं, मतलब इनफ नहीं है। हमको गुरु होना जरूरी है हमारे जीवन में। But you want to get guru, you have to be qualified. You want to get Krishna's mercy, you have to be qualified. परंतु अगर गुरु हमें हमारे जीवन में प्राप्त करना है तो हमें योग्य बनना चाहिए। अगर हमें कृष्ण चाहिए तो हमें योग्य बनना चाहिए। So to get guru in ISKCON, we have 4 principles, 4 rules you have to follow. तो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत में अगर गुरु प्राप्त करना है तो हमें 4 नियमों का पालन करना आवश्यक है। Right? The 4 principles of religion: Satyam, Socham, Daya, Tapa. The 4 bulls of Dharma. The bull stands on 4 legs. So the 4 rules: Satyam, Socham, Daya, Tapa. Truthfulness, cleanliness, mercy, austerity. तो ये जो कलयुग में जो धर्म के 4 स्तंभ हैं, ये जो कलयुग के जो बैल है वो 4 पैरों पे खड़ा है, वो है सत्य, तप, दया और शौचम। So tapa, austerity, is destroyed by pride. People very proud. They don't want to do any austerity. They want to sit on the floor like you're doing. They want to take intoxication all the time. They become very proud. हाँ, तो ऐसे जो लोग हैं तप यानी तपस्या, जो घमंडी लोग होते हैं वो तपस्या नहीं करना चाहते। जैसे आप सब अभी इधर प्रस्तुत है, जमीन पर भी बैठे हैं, कुछ लोग नहीं बैठना चाहेंगे, उनको बहुत घमंड होता है। हाँ, तो वो अन्य जो धूम्रपान और ऐसे पान कर करके नशा करने में अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। So tapa is destroyed by intoxication. तो जो तपस्या है उसका नाश होता है नशा करने से। Then daya, mercy. Mercy is destroyed by eating animal flesh. और जो दया है उसका नाश होता है जब हम जानवर के शरीरों को अपने जीवा के लिए खाते हैं। People think, oh, they just eat everything. They eat all kinds of animal seafood, they eat eggs, they eat all kinds of things which are not good. तो ऐसे हम देख सकते हैं बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो जानवर का मांस खाते हैं, अंडा खाते हैं, अन्य चीजें खाते हैं, वो अच्छा नहीं होता।
So we practice mercy. We don't kill animals. तो इस तरह से हम दया का अभ्यास करते हैं, हम दूसरे अन्य जानवरों को नहीं मारते। And then Socham, cleanliness. You have to be careful how you associate with the other sex. तो शौचम जो है, ये जो शौच का जो प्रभाव है वो हमें बहुत सावधान रहना चाहिए कि कैसे अन्य जो दूसरे स्त्री पुरुष से और पुरुष स्त्री से संबंध ना करें। Of course, we encourage people to get married, be married and have a family, have nice children, and bring your children up to be God conscious, to be Krishna conscious. पर तो हम तो लोग को बोलते हैं कि आप शादी करिए और बच्चे पैदा करिए और अपने बच्चों को भी ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान सिखाइए और उन्हें कृष्ण भावनामृत बनाइए। It's a great benefit to them to get that kind of education in the beginning of their life. हाँ, तो ये बहुत अच्छा होगा अगर जो बच्चे हैं उनको बचपन से ही ये कृष्ण भावनामृत का ज्ञान दिया जाए। And then finally, Satyam, truthfulness. So we don't allow devotees to gamble. हाँ, और जो सत्य है वो नाश होता है इससे जब लोग जुआ खेलते हैं। And people gamble. They waste their time watching so many movies. They're watching so many Bollywood movies or Tamil movies, this movie, that movie. तो लोग ऐसे नशा करते, जुआ खेलते हैं और लोग ऐसे बहुत सारे पिक्चर भी देखते हैं, बॉलीवुड या हिंदी या तमिल, ऐसे बहुत सारे पिक्चर भी देखते हैं। So we have 4 principles: no meat, fish and egg, no intoxication, no gambling, no illicit sex. तो ये जो 4 नियम हैं हमारे कि कैसे हमें जानवरों का मांस नहीं खाना है, कैसे नशा नहीं करना है, कैसे अन्य स्त्री या पुरुष से गैर संबंध नहीं रखना है। So to help you do these things, to follow these 4 rules, you have to chant every day 16 rounds. तो ये 4 नियमों का पालन करते करते हमें 16 माला का जप करना आवश्यक है। So many devotees were chanting during Holy Name Week. They're chanting 64 rounds. तो ऐसे बहुत सारे भक्त हैं जो ऐसे जप करते हैं, 64 माला का जप करते हैं, जैसे वर्ल्ड होली नेम वीक अभी गया था। So if they can chant 64 rounds, they can chant every day 16 rounds. तो अगर 64 माला लोग कर सकते हैं तो 16 माला तो जरूर कर सकते हैं। And then they can get initiated. तो इस तरह उनको दीक्षा मिल सकता है। Of course, you have to give up onion and garlic also. हाँ, और हमें जो अनियन और गार्लिक है, जैसे प्याज लहसुन प्याज लहसुन को भी त्यागना पड़ेगा। Yeah, you have to eat prasadam, food offered to Krishna. Krishna does not like onion and garlic. तो हमें ये सब त्यागना पड़ेगा और हमें केवल कृष्ण प्रसाद ग्रहण करना पड़ेगा और कृष्ण को प्याज लहसुन नहीं पसंद। So it sounds difficult because you have so many bad habits. तो कभी कभी ये कठिन हो जाता है क्योंकि लोगों के पास बहुत गंदी बुरी आदतें होती हैं। You have to learn the good habits. The good habit is chanting Hare Krishna, eating prasada. तो हमें अच्छी आदतों का आदत डालना चाहिए कि कैसे हमें कृष्ण प्रसाद पाना चाहिए और हमें कैसे भगवान के नाम का जप करना चाहिए। Hare Krishna. Gopastami. Can you brief? Gopastami. Yesterday we celebrated the holy day of Gopastami. We were offering our respect to the cows, and we were especially remembering Lord Krishna, who was taking care of the cows. So Gopastami is the day Krishna starts. Before, as a young boy, he was taking care of the calves, but when he gets a little older, he takes care of the cows. So that was the ceremony yesterday. Krishna began taking care of the cows instead of the calves. तो कल जो है वो बहुत ही शुभ अवसर था गोपाष्टमी का। तो गोपाष्टमी बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है कि कैसे गोपाष्टमी के दिन हम आदर करते हैं, सम्मान करते हैं गौ माता का और कृष्ण भगवान का जो गौ माता का रक्षण और पालन करते हैं। तो कृष्ण जब छोटे बच्चे थे तो वो बछड़ों को चराते थे, परंतु कृष्ण जब थोड़े बड़े हुए तो वो गायों को चराने लगे। तो इस गोपाष्टमी के दिन कृष्ण अभी गायों को चराने लगे। So the cows have to be taken care of nicely.
They're the mother, one of our mothers, right? The cow is one of the mother. And we have to take care of our mother cow, keep her nicely, give her nice grass to eat, keep her clean, keep her happy. And in this way the whole world will be benefited. तो ऐसे हमें गौ माता का आदर सम्मान करना चाहिए, उनको पूछना चाहिए। गाय जो है वो हमारी माता है, तो उन्हें अच्छी तरह धोकर उनको जो चारा देकर उनका अच्छे से पालन पोषण कर अगर हम अपनी जिंदगी बिताएंगे तो पूरा जो संसार है वो उससे उपलब्धि प्राप्त करें। Srila Prabhupada lamented how in America, he said, you know, America, they were so nice, they let me spread Krishna consciousness there. He said, there's only one thing, if only they would not kill so many cows. तो श्रील प्रभुपाद ऐसे बता रहे थे कि कैसे अमेरिका इतना अच्छा देश था, उन्होंने आने दिया श्रील प्रभुपाद को कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने दिया, परंतु श्रील प्रभुपाद ने कहा केवल एक चीज, अगर वो इतने सारे गौ की हत्या न करें। So the cow is very sacred to us, it's a very important part of the Vedic culture, the cows and the Brahmins. From the cows we get milk, and from milk we get ghee, and with ghee you can make nice offering to Krishna. तो ये जो गाय है बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी वैदिक संस्कृति में, गाय और ब्राह्मण। तो गाय हमें दूध देती है, दूध से हमें घी मिलता है, और घी से हम बहुत सारे अच्छे मिठाई बना के कृष्ण को भोग लगा सकते हैं। We say Namo Brahmana Devaya Go Brahmanya Hitaya Cha Jagat Hitaya Krishnaya Govindaya Namo Namaha. Lord Krishna is very fond of the cows and the Brahmanas. They go together, they're both very important. तो श्लोक के माध्यम से हमें सीखने को मिलता है कि कृष्ण जो है वो गाँव जो गैया है और जो ब्राह्मण है उनको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत दोनों साथ में अच्छे से जाते हैं और कृष्ण उनसे बहुत प्रेम करते हैं। So Brahmana means devotee Brahmana, not just only this birth, not just Jati Brahmana, but devotee Brahmana, Vaishnava Brahmana. तो ब्राह्मण का अर्थ है वो ब्राह्मण जो वैष्णव ब्राह्मण हो, केवल जाति से या जन्म से कोई ब्राह्मण हो वैसा नहीं। Brahmana means have to follow four principles. Satyam, Sucham, Daya, Tapaya. ब्राह्मण का अर्थ है जो इन नियमों का पालन करे, सत्यम, शौचम, दया, तपस्या। So we want to educate people the real value of these things, the Brahminical culture and the cows. And if we take care of these things nicely, then the world will be very wonderful. Everything in the world will become changed and very happy and very peaceful, very pure. तो ऐसे हमें लोगों को शिक्षा देना है गौ के बारे में और ब्राह्मण के बारे में। अगर लोग इन दोनों चीज़ों का अच्छी तरह आदर सम्मान करके पूजे तो फिर ये जो पूरा संसार है ये बहुत ही सुखमय जीवन हम सब बिता सकते हैं। So we encourage all of you also take up this Krishna consciousness movement. तो इसलिए हम सब आए हैं आपको बताने के लिए कि कैसे कृष्ण भावनामृत ले अपनी जिंदगी में उतारे। Chaitanya Mahaprabhu called Lord Nityananda and Haridas Thakur to him, and he said to them, Suno Suno Nityananda, Suno Haridas, Priti Gari Gari Gya Koro E Bhiksha, Bolo Krishna, Bhajo Krishna, Koro Krishna Shiksha. This is Bengali from Chaitanya Bhagavad. Lord Chaitanya is saying, he said, listen, Nityananda and Haridas, I want you to go to every door, in every house, every gully, and you tell the people, Bolo Krishna, chant the names of Krishna, Bhajo Krishna, worship Krishna, Koro Krishna Shiksha, read the books about Krishna. तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को अपने पास बुलाया और ये श्लोक के माध्यम से उन्हें कहा। ये श्लोक चैतन्य भागवत में आता है, बंगाली भाषा में है, और ये श्लोक का अर्थ ये है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु और हरिदास ठाकुर को कह रहे हैं कि आप हर दरवाजे पर जाओ और हर एक व्यक्ति को पकड़ पकड़ के कहो
कि कृष्ण का नाम जपे, उन्हें कहो कि कृष्ण के भजन गाए और उन्हें सिखाओ कृष्ण का कैसा ज्ञान प्राप्त होता है। So 3 things you have to do, right? You have to chant the names of Krishna. You have to worship Krishna and read the books about Krishna. तो ये 3 चीज हमें करना चाहिए। हमें कृष्ण नाम का जप करना चाहिए, कृष्ण की पूजा करनी चाहिए और कृष्ण के विषय में जितना भी ज्ञान है वो प्राप्त करना चाहिए। So chanting Hare Krishna, we have our japa mala. You have to chant every day. तो ऐसे हमारे पास ये जपमाला है, तो हमें रोज भगवान के नामों का जप करना चाहिए। Right? Many of you have got japa beads, you're chanting. Now you have to also make it regular. You have to chant every day 16 rounds. तो आप सब में से बहुत भक्त हैं जो जप कर रहे हैं, पर इसको अभी रोज प्रतिदिन 16 माला का जप आप शुरू करें। And you have to worship Krishna. और हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। Just like there's a festival coming, I think it's tomorrow, on Sunday, there's a festival, Tulsi Vivaha, the marriage of Tulsi. Tulsi gets married to Shalagram. Shalagram is the Lord Vishnu. तो रविवार के दिन बहुत महत्व उत्सव आ रहा है, तुलसी शालिग्राम विवाह। तुलसी महारानी का विवाह होता है शालिग्राम से, जो विष्णु है। So you can keep Tulsi at home and you can worship Krishna in the form of the Tulsi tree. तो ऐसे ही हम तुलसी महारानी को घर पे ला सकते हैं और कृष्णा का पूजा वैसे कर सकते हैं। Tulsi is the devotee of Krishna. तुलसी महारानी वो कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त है। Very pure devotee of Krishna. If you keep Tulsi in your home will be greatly benefited by having Tulsi there. तो तुलसी महारानी बहुत ही शुद्ध भक्त है कृष्ण की। अगर हम सब अपने घर में तुलसी महारानी रखेंगे तो वो बहुत ही हमें लाभदायक होगा। So you should all try to have Tulsi and you can take part in this festival. This is worshipping Lord Krishna. तो इस प्रकार आप सबको तुलसी महारानी लाकर घर पे रखना चाहिए और इस माध्यम से हमें कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। And read the book, have some book, Bhagavad Gita. Is everyone got a Bhagavad Gita? क्या आप सबके पास भगवद गीता है घर पे? Yes, many people. If you don't have Bhagavad Gita, you should get one. You can get the soft copy. Everybody got a mobile phone. If I ask who's got mobile phone, everybody got mobile phone. अगर मैं पूछूंगा किसके पास मोबाइल फोन है तो सब लोग हाथ उठाएंगे। तो ऐसे इसी प्रकार भगवद गीता आप फोन पे भी डाउनलोड कर सकते हैं। So you put the Bhagavad Gita soft copy in your mobile phone. You can read every day. तो इसी प्रकार हम भगवद गीता अपने मोबाइल फोन में डाउनलोड करके रोज उसका पठन कर सकते हैं। So this way you make your life Krishna conscious. इसी प्रकार हम अपना जीवन कृष्ण भावनाओं में बनाएं। And yam vapi smaram bhavam chajati anti kalivaram. Whatever we remember at the end of life, then you get that destination in the next life. If you're thinking of Krishna, at the end of life, you'll go to be with Krishna in the next life. तो श्लोक के माध्यम से हम ये सीखते हैं कि जीवन के अंत में हमारा जो विचार होगा, हमें अगला जीवन उस प्रकार मिलेगा। तो जीवन के अंत में अगर हम कृष्ण के बारे में सोचेंगे तो हम कृष्ण के पास वापस जाएंगे। But if you're thinking my money, my bank account, my car, my home, I don't know where you will go next life. पर अगर हम सोचेंगे कि अरे मेरा पैसा, मेरा बैंक, मेरी गाड़ी, तो मुझे पता नहीं हम कहाँ जाएंगे अगले जीवन में। You can be the big man in the factory, next life you can be the rat in the factory. तो ऐसे कोई फैक्ट्री में बड़ा मालिक हो सकता है, परंतु पुनः अगले जन्म में वो चूहा बन सकता है उसी फैक्ट्री में। So don't waste this life, valuable life. Become Krishna conscious. तो हमें ये जीवन व्यर्थता में नहीं बिताना चाहिए, हम सबको कृष्ण भावना में होना चाहिए। Let's all go back to Godhead together. हम सबको साथ में भगवत धाम वापस जाना चाहिए। Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, where's our Prabhu? Have you got the form? Brajananda, where did it go? Somebody else has a question?
Yes, what's your question? मेरे सामने one question. After that, how do we choose that? How do you choose the Guru? Well, first thing you have to do is take the ISKCON disciple course. We have a course to help you, to train you how to choose your Guru. In ISKCON, there are many Gurus, more than 100. So you can choose who you... But the main thing is you have to hear from them. You have to hear regularly. And you have to be convinced that this person can save me. He can help me, he can save me. You have to hear from them regularly, maybe 1 year you should hear from them. And be convinced that this person can help me. So that's how you should pick your Guru. तो माता जी का प्रश्न था हम गुरु कैसे चुने? तो महाराज बता रहे हैं कि ISKCON आंदोलन में देखा जाए तो ऐसे 100 गुरु हैं, 100 से भी ज़्यादा। तो गुरु कैसे चुने? तो ISKCON जो डिसाइपल कोर्स है पहले वो हमें लेना चाहिए। फिर जो भी हमें गुरु दिखते हैं कि हमें जो उत्साहित करते हैं उनसे हमें 1 वर्ष के लिए सुनना है कि वो कैसे हमारे जीवन में प्रभाव ला रहे हैं। फिर हम उनको गुरु मान सकते हैं, उनसे दीक्षा ले सकते हैं। Just like Lord Krishna said to Arjuna, now hear from me, Arjuna. How by practicing yoga you can know me in full, free from Dhamma. तो जैसे कृष्ण अर्जुन को भी भगवद गीता में बता रहे, अभी आप सुनिए मेरे से कि कैसे आप योग से अपना जो भ्रम है उसको दूर कर सकते हैं। So picking the Guru, everybody has their own right. Everybody can choose that Guru for themselves. They can choose who they want to be their Guru and they can choose when they want to take the initiation. तो ऐसा सब चुन सकते हैं कौन सा गुरु मुझे अपने जीवन में उतारना है, किसका दास मैं बनना चाह रहा हूँ। ऐसे सबके पास वो है कि कौन से गुरु चुनूं और किस समय में मैं दीक्षा ले सकूं। Because Guru also can choose who he wants for disciples. गुरु भी चुन सकते हैं कि कैसे मैं अब शिक्षा इसको दूंगा। Disciple may say, I want Guru like Krishna. जो डिसाइपल है वो बोल सकते हैं मुझे गुरु चाहिए कृष्ण के समान। And Guru will say, I want disciple like Arjuna. और जो गुरु है वो बोल सकते हैं मुझे डिसाइपल चाहिए अर्जुन की तरह। So you have to be qualified, you have to understand the position of the Guru as well as position of the disciple. तो इस प्रकार हमें समझना चाहिए जो गुरु का स्तर कौन सा है और जो शिष्य है उसका स्तर कौन सा है। The duty of the disciple described in the Bhagavad Gita, Tadvidi pranipatena pariprashnena sevaya upadeshanti te jnanam jnanina tattvadashana. So disciple should approach the Guru pranipatena. He has to fall down in front of the Guru first. तो भगवद गीता में बताया गया है कि कैसे जो शिष्य है उनका क्या कर्तव्य है। शिष्य जब गुरु चुनते हैं तो उनको गुरु के चरणों में अपने आप को समर्पण करना चाहिए। Then pariprashna, you have to put questions, you have to inquire. और परिप्रश्न, गुरु से प्रश्न पूछना है, जिज्ञासा करना है। And then sevaya, you have to do service for Guru. और गुरु की सेवा करनी चाहिए उसका पश्चात। And Guru also has to be qualified. He has to be tattvadarshan. और जो गुरु है उनका भी लक्षण ये है कि उनको तत्वदर्शी होना चाहिए। Not only he knows the truth, but he can reveal it to others. केवल उनको ही परम सत्य का ज्ञान नहीं है परंतु वो दूसरों को भी बता सकते हैं परम सत्य का ज्ञान। Some people say, I know the truth, I just can't put it into words. बहुत लोग बोलते हैं कि मुझे सब पता है परंतु मैं बोल नहीं पाता हूँ सही तरीके से। So they know the truth, they can't, then it's useless, it's not going to help you. उनको ये सब पता है पर इससे कुछ फायदा नहीं होगा, उससे कोई सहायता नहीं होगी। So not only must Guru know, but he must be able to put it in a way so that people can understand it. तो गुरु को केवल पता नहीं होना चाहिए परंतु उन्हें
समझाना चाहिए ताकि अन्य जो दूसरे लोग हैं वो भी समझ सके। So that's why you have to hear. तो इसलिए हमें श्रवण करना चाहिए। So you should take the ISKCON Disciple course. It's available online. जो ISKCON का जो शिक्षा का कोर्स है वो हमें शिष्य का कोर्स है वो हमें लेना चाहिए, वो ऑनलाइन भी अवेलेबल है। Tell you about how to select your guru. तो ये हमें सिखाएगा कि कैसे हमें गुरु चुन सकते हैं। Okay? हरे कृष्णा। आप लोग को आनंद आया? महाराज इंग्लिश में बोले और हमारे रामराजा प्रभु हिंदी में अनुवाद किए, सबको समझ में आया? तो महाराज को प्रश्न पूछे कि कैसे गुरु को चुनना है, तो महाराज क्या बोले? हमको क्या करना चाहिए? अभी पिछले लास्ट हमारे जो 5th बैच सनातन धाम में 5th बैच आईडीसी कोर्स में कौन भाग लिए थे? माता जी, 2 माता जी। बस अगर कोई आईडीसी कोर्स करना चाहते हैं तो आप लोग बुक स्टॉल में नाम लिखवा दीजिए। जो ISKCON डिसाइपल कोर्स जो करना चाहते हैं, जो बुक स्टॉल में उसमें नाम लिखवा दीजिए, ठीक है? उसके लिए क्या योग्यता चाहिए? 16 माला जप करना चाहिए। अगर कोई 16 माला, कितना जन 16 माला जप करते हैं? कितने? बहुत जन। तो जितने जन 16 माला जप करते हैं, अगर ISKCON डिसाइपल कोर्स नहीं किया तो आप नाम लिखवा सकते हैं। कहाँ पर? बुक स्टॉल में, ठीक है? तो महाराज हमको बहुत समय दिए, और महाराज आप जानते हैं कि प्रभुपाद की प्रत्येक के शिष्य है, डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो हमें बड़ा सौभाग्य है। तो प्रभुपाद तो अभी फिजिकली नहीं रहे, लेकिन उनके जो शिष्य के माध्यम से हमारे ऊपर कृपा कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज के लिए एक बार सब जन हाथ ऊपर करके हरे कृष्ण महामंत्र बोले। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। परम पूज्य श्री श्रीमद् भक्ति विघ्न विनाश नरसिंह स्वामी महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर सनातनानंद हरि हरि। अब सनातन धाम की ओर से मैं अपना रामराजा प्रभु से निवेदन करता हूँ, तो महाराज की छोटा सा भेंट देंगे। So I will now inform all of you what is our next कार्यक्रम, what is the next program. So now we will request Maharaj after some time to talk this side. The kids are going to perform some skit. Okay. After the skit, थोड़ी समय के बाद अभी बच्चे लोग एक छोटा सा प्रस्तुत करेंगे नाटिका। उसकी पश्चात जो भागवत गीता की जो गीता कोर्स कितना जन कर रहे हैं? अभी हिंदी में जो गीता कोर्स हुए हिंदी में अगर कर रहे हैं, जो किताब के लिए जो पेमेंट दिए हैं 5 जन है, जो अभी महाराज के हाथ से कर कमल से आप पुस्तक ले सकते हैं, जिन्होंने पुस्तक के लिए पेमेंट किए। उसकी पश्चात महाराज ने बोले कम से कम कितना माला करना है? 16 माला। तो विश्व हरिनाम सप्ताह सितंबर महीना में पालन किए हम लोग 19 तारीख से लेकर 23 तारीख। उसमें से कुछ भक्त ने एक दिन में 64 माला, उससे भी कहीं ज्यादा माला किया। अब महाराज की कर कमल से तो आप लोगों को सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ठीक है? अब हम लोग फर्स्ट विल गो फॉर स्किट, सेकेंड सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन, भागवत गीता डिस्ट्रीब्यूशन, आफ्टर दैट दामोदर आरती, और दामोदर आरती के बाद सीधे आप आना, महाराज के हाथ से प्रसाद लेना और फिर प्रसाद, ठीक है? ये हमारी कार्यक्रम, ओके?
Now I will request Mangalat Mataji, 5 minutes kirtan. Okay? And I will request Sundar Prabhu and 2 Prabhus. We will sit the Maharaj Dasasan to down. Okay? Stop. Will you close?